Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityananda
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारे नमो महावरण्याय कृष्णदेवप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Happy to be here. So many devotees came for the morning only chanting today. So I think Manu Prabhu was there, Bhavana Mataji was there, Sunita Mataji is there. So many devotees, and then slowly devotees start coming. So that looks very, the purpose of center is that we start our early morning, Brahmara time. Yeah, of course, Brahmara time is 4:30 to 6, but nevertheless, 6 o'clock there, and as a new center comes, our time to come can increase little up. There. So the topic and what was given was 10 topics of Srimad Bhagavatam, but actually the flow of second canto goes, the first comes creation of universe. So previously I was supposed to come late, so I put that topic late, but since I happened to come today, so I take first this creation of universe, and we take 10 topics of Srimad Bhagavatam later. So before I take about creation of universe, we will talk about one pastime of Lord Krishna taking Arjuna to the abode of Mahavishnu. Anyone of you have heard about the abode of Mahavishnu? Abode of Mahavishnu. Okay, who is Mahavishnu? So we heard about Narayan, we know about Vaikuntha, we know about Golok Vrindavan, we know about Swarga. But what is this Mahavaikuntha? This Mahavishnu, where does Mahavishnu stays? Karnadakshai Vishnu is also the another name of Mahavishnu. So we'll see, and then after we will see that how the whole creation comes from Mahavishnu. So first we will go with Krishna's journey to Mahavishnu, and then we'll see how the whole universe, it comes in the creation from Mahavishnu. It's a little technical subject today, but the application is quite profound. If you see in Bhagavad Gita, again and again Krishna talk about his glories. Is English okay or should I speak in Hindi? Anyone? Hindi. So, Karnadakshay Vishnu, how कि ब्रह्मांड का यूनिवर्स कैसे आता है। तो अगर आप भगवद गीता देखते हैं तो हर चैप्टर में भगवान अपने बारे में बताते हैं कि सब कुछ उनसे आ रहा है, सब चीज़ के स्रोत वही है, और फिर बाद में बोलते हैं कि तो मेरी शरण आओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? हम भगवान की तरफ शरण तभी ले सकते हैं जब हमें विश्वास हो कि भगवान सच में शरण देने योग्य है। जब तक हमें विश्वास नहीं कि वो हमारे शरण देने योग्य हैं, ऐसा मैंने कि भगवान बड़े हैं, शरण देने योग्य भी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। जो हमारे जीवन में चीज़ें हो रही हैं उनका कंट्रोल नहीं है, तो भी फिर शरण लेने का मतलब नहीं बनता है। तो कृष्ण भगवद गीता में सारे डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, इसलिए भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस्कॉन का भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम है। भक्ति शास्त्री में जो डिवोटी 16 नोट्स पे आ जाते हैं तो उनको फिर आगे बढ़ने के लिए भक्ति शास्त्री करना अनिवार्य है। और भक्ति शास्त्री हैज भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड issue of nature, and soon we will be starting in our center. The
Bhakti Shastri course, but it's very, very important. Why? Unless we learn Gita thoroughly. So initially, unless we learn Bhagavad Gita thoroughly, to make this spiritual advancement is little difficult. And therefore Bhakti Shastri course, which is meant for the 16 honored devotee, it helps them to go level further up. The Bhagavad Gita course there. And we go into detail. So how Krishna in Bhagavad Gita talking about his supremacy and also talking about taking shelter of कि भगवान की हम शरण में आए, ऐसा क्या कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। So what has happened? एक ब्राह्मण था द्वारका में, उसके 9 संतान मर गए। और पहले ऐसा था, अगर बाप जिंदा हो तो बेटा मर नहीं सकता। अगर बाप के जिंदा होते बेटा मर गया मतलब राजा में कुछ फॉल्ट है। That means if the king rules very nicely, there will be no problems in the kingdom. People will not die untimely. There will not be excessive rain, excessive fog, excessive cold. तो ये जो है, अगर एक राजा जो है बहुत पुण्यवान है तो नेचुरली देखेंगे आप सब कुछ अच्छा होगा। बस एक राजा अगर पुण्यवान व्यक्ति है तो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर और आजकल कलयुग में तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सारी सफरिंग आती है। लेकिन द्वापर युग तक ऐसा था कि अगर कोई ब्राह्मण के कोई परेशानी हो रही है तो दोष इसका राजा था। तो वो ब्राह्मण जब भी हर बच्चा उसका मर जाता पैदा होते ही, तो वो जाकर किस पे इल्जाम लगाता? उग्रसेन पे। और भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, कंदीर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई इल्जाम लगाता था। अरे नवा बच्चा मारा गया तब आके फिर रो रहा था, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, किसी काम के क्षत्रिय नहीं है, सब मेरा बच्चा मारा गया। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अरे मैं हूँ यहाँ पर। तो ब्राह्मण बोलता है, अरे नायदर संकर्षण, ब्राह्मण बोलते हैं श्री ब्राह्मण वाचा संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो अपचिकथो नात्रात्मश्रुवन्त्य। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये लोग नहीं बचा पा रहे, तू कौन होता है? तो ब्राह्मण ने डायरेक्ट अर्जुन को बोल दिया। अर्जुन ने बोला अरे हम हैं करके। फिर अर्जुन को थोड़ा and he said, why do you namely attempt a feat that the Almighty Lord of the Universe could not perform? और अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। ना हम सब कृष्णो ब्राह्मणा न कृष्णा काशी रेवचा अहम अर्जुन नाम गांडीवम यस्य रहितम्। तो जिनको संस्कृत आता है थोड़ा आप उसका रस समझ सकते हैं कि मैं संकर्षण नहीं, कृष्ण भी नहीं, ना कृष्ण के बच्चे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मैं गांडीवधारी अर्जुन। तो बेसिकली क्षत्रिय की लज्जा बचाने के लिए अर्जुन ने थोड़ा उस पर रिप्लाई दे दिया करके, आई एम नॉट संकर्षण भावना नॉट कृष्णा नॉट कृष्णास सन। डोंट मिनिमाइज माय एबिलिटी, आई फॉट विद गॉड शिवा। अर्जुन ने शिव जी के साथ भी फाइटिंग करी थी और शिव जी बहुत बजरंग ने पशुपात अस्त्र दिया था। सो आई ब्रिंग बैक योर सन्स, इवन आई हैव टू डिफीट यमराज, यमराज से भी लड़ूंगा लेकिन तुम्हारे बच्चों को वापस लेकर आएंगे। तो अर्जुन में क्षमता तो थी, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब ब्राह्मण को कन्विंस हो गया, फिर वो 10वां बच्चा पैदा करने के लिए गया। अब 1 साल तो लगता है बच्चा होने में, तो ब्राह्मण तो अर्जुन 1 साल तक द्वारका में रुके रहे कि अभी ब्राह्मण का बच्चा होगा तो बचाना है। और फिर कुछ 1 साल बाद वो ब्राह्मण आया, बोला the wife of the elevated Brahmin was about to take birth, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ। और अर्जुन जो है इस बार शिव जी को रिस्पेक्ट करके गए
भगवान कृष्ण को रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ने ऑलरेडी डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। तो शिव जी को प्रणाम करके वो गए अर्जुन। और जब अर्जुन वहाँ गए तो पूरा ऐसा कारागार बना दिया उन्होंने। अर्जुन ने पूरा जो शिशु गृह था उस पर पूरा बाण चला के पूरा कारागार बन गया चारों तरफ करके। और वो सेलेस्टियल था कि कोई भी ऊपर आके उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे S-400 है ना डिफेंस सिस्टम, उससे तगड़ा डिफेंस सिस्टम अर्जुन ने बनाया था पूरा। अब बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज आई, पर क्या हुआ, बच्चा भी गायब और वो सारे तीर भी गायब। अब ब्राह्मण फिर से हाय हाय करने लगा कि मैंने किस यूनिट पे की बात पे विश्वास कर लिया। How foolish I was to put faith in the bragging of a eunuch. तब अनिरुद्ध राम और केशव नहीं बचाता है, ये अर्जुन पे मैंने क्यों विश्वास कर लिया, मेरी मति मारी गई थी। To hell with that liar Arjuna, to hell with beggar's bow. He's so foolish that he has deluded himself thinking he can bring back a person whom destiny has taken away. और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन के पास भी बहुत सारे मंत्र थे। वो उसमें मिस्टिक इंकांटेशन, ये व्यासदेव ने प्रतिस्मृति मंत्र दिए थे, महाभारत में आता है युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर ने अर्जुन को दिए थे जिससे वो कहीं भी जा सकता था। तो उन्होंने मिस्टिक इंकांटेशन किया और संयमीपुरी गए। संयमीपुरी जहाँ पे सब लोग मर के जाते हैं उसको संयमीपुरी बोलते हैं, जो यमराज की राजधानी है। तो वहाँ पर गए संयमीपुरी, यमराज को पूछा अरे बेटा है क्या, तो नहीं है यमराज। फिर सारे अग्नि के घर गए, तो माउंट मेरू के ऊपर में ये सारे इनके रिजॉर्ट्स हैं, तो वहाँ पर ये सब आता है। पूरा स्ट्रक्चर 5वें स्कंद में बताया गया भागवतम में कि कहाँ पर क्या है। तो ऊपर अग्नि का अबोर्ड है, वरुण का अबोर्ड है, जयंती का अबोर्ड है। तो ये सारे अबोर्ड माउंट मेरू के ऊपर है और ये नीचे पूरा मेरू है। तो सब जगह जाके देख लिया अर्जुन ने। ऊपर तक भी गए, ब्रह्मा जी के उस जगह गए और कहीं भी बालक नहीं मिला। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जहाँ भी जा सकते थे सब देख लिया, नहीं मिले। फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी अगर नहीं बचा पाया तो मैं आई विल एंटर फायर। तो उन्होंने अंदर फायर बनाया और एंटर करने वाले थे। तो जानो क्या हुआ होगा, काम के प्रति जाने न में भक्तियाँ पढ़ने सकी। अरे पहले भगवान से भी पूछा कि कहाँ है, मुझे पता नहीं, तुम देख लो। अब जब अर्जुन उसमें, तो देखो भगवान कभी भक्तों को बहुत खिलाते भी हैं। कभी हम जीवन में परेशानी में तो भगवान हेल्प नहीं कर रहे, क्या हुआ, हम इतनी परेशानी में पड़े हैं, भगवान कभी हेल्प नहीं कर रहे। कि जब तो थोड़ा अहंकार होता है ना, भगवान थोड़ा उस अहंकार को मिटने देते। तो जब अर्जुन की सारी होप चली गई, अब सब वो हो गया, जैसे अहंकार का विनाश हो गया। अब तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद, ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन लीला के रूप से कभी पार्षद भी ऐसे मिस्टेक्स करके हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दे विल नॉट डू मिस्टेक। लेकिन अब लीला के उसमें कई बार भगवान थोड़ी लीला दिखाकर उनको भी थोड़ा वो करते हैं। जब अर्जुन जाने लगे तब भगवान ने हेल्प किया। तो कई बार हम भी भक्ति कर रहे हैं, जीवन में परेशानी आती है, क्या करें, भक्तों ने तो बोला तो भगवान हेल्प करेंगे, भगवान हेल्प नहीं कर रहे, ये क्या बात हो गई करके ऐसा थोड़ा सा सपोर्टेशन होगा। तो ये तो पंखा हल्का कर दो, उसको हल्का कर दो। ठीक है, वो मचल वेंटिलेशन तो कई बार हमें लगता है भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कभी कभी होता है कि कितनों का एक्सपीरियंस होता है, अभी हाथ उठाएंगे कि लगता है कि हमने सुना तो था कि भगवान करेंगे पर कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो भगवान देखते हैं जब तक हमारा अहंकार मिट नहीं जाता है ना, तब तक थोड़ा भगवान खेल लेते हैं।
लेकिन जब वापस हम नीच में आके आ जाते हैं, भगवान आप वापिस आ गए, तो भगवान अपने भक्त को विनाश होने नहीं देते। तो भगवान कैसे भक्त के जीवन में ऐड करते हैं, बहुत बड़ा साइंस है। और लोग भी विमोहित हो जाते हैं ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन भक्त विमोहित नहीं होता है। धर्म के लोग विमोहित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है भक्त के जीवन में, पर भक्त विमोहित नहीं होता। भक्त को एक श्रद्धा होती है कि भगवान बचाएंगे। तो जब अर्जुन फायर में फाइनली जाने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे मुझे पता है बच्चे कहाँ हैं, चलो मेरे साथ। अभी तक नहीं बताया था, जब सब हो गई तब भगवान अब यहाँ पे बताने आए। कृष्ण स्टॉप है, और जो लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं वही हम सब वाली कीर्ति करेंगे, चिंता मत करो। अब भगवान वेस्ट की तरफ गए। कैसे गए? उनके जो चैरियट थे उसको लेके। और सप्तद्वीप तो आपने सुना होगा, ये सप्तद्वीप अर्थ के कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं विच इज अनडिस्कवर्ड टिल नाउ बाय साइंस। तो भगवान उन चैरियट्स को लेते लेते वो सप्तद्वीप पार करके गए। फिर वहाँ पे लोकालोक माउंटेन आता है। लोकालोक माउंटेन एक बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड सन की किरण भी नहीं जाती है। फिर चैरियट जो है, भगवान का जो रथ है वो दिव्य दिव्य रथ है, और उनके घोड़े भी दिव्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड के घोड़े हैं। वो लेके लोकालोक माउंटेन भी क्रॉस करने लगे तो बहुत अंधेरा, जैसे रात भी हो जाए तो एकदम खूब अंधेरा नहीं होता है, चंद्रमा होता है, सितारे होते हैं, कुछ ना कुछ तो रोशनी रहती है। लेकिन वहाँ लोकालोक माउंटेन के प्रति इतना गहरा अंधेरा, ऐसा लगता है कि अंधेरे में आप खो गए। तो वो हॉर्स भी चकरा गए कि क्या हुआ। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, और सुदर्शन जो है भक्तों की रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र जो है आगे आगे चलता गया, सब रोशनी करते गए। फिर भगवान जो है अर्जुन को लेकर ब्रह्मांड की, अच्छा अब ये ब्रह्मांड जो है काला दिखता है, मतलब रात हो जाती है तो यहाँ रोशनी नहीं दिखती है, कि ब्रह्मांड के ऊपर 8 लेयर्स होती है, धूप की, जल की, अग्नि की, मन की, अहंकार की, ऐसे 8 लेयर्स होती हैं, जिसमें ये ब्रह्मांड एक अंड की तरह बंधा होता है, ये यूनिवर्स जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं। फिर उनका चैरियट उसको भी क्रॉस करके पहुंचे। एंड चैरियट बियॉन्ड द डार्कनेस, एंड तब कहाँ पहुंचा? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं इम्पर्सनेस, ब्रह्मन। तो ये ज्योति क्या है? भगवान से आने वाला प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति इतनी ज्यादा ग्लेडिंग थी कि अर्जुन को पूरा एकदम आंखें मीचने लगे। एंड देन दे एंटर्ड अ बॉडी ऑफ वाटर। ये कौन से? कारण सागर। तो इस ब्रह्मांड के परे क्या? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के परे कारण सागर, कैज़ोरोश। तो वहां गए, और वहां पे देखा एक अमेजिंग पैलेस था। Within that ocean there was an amazing palace, more radiant than anything he had seen before. He had thousands of ornamental pillars building with brilliant jewels. In that palace was a huge, awe-inspiring serpent, Anantashesh. He shone brightly with the radiance emanating from the gems on his thousands of foot. He resembled like Mount Kailash. Then he saw the omnipresent, omnipotent, supreme Lord, महाविष्णु। और महाविष्णु कितने हाथ थे? 8 हाथ थे। और यही महाविष्णु है जिनसे सारे यूनिवर्स निकल के आते हैं, ब्रह्मांड के परे। उनको अर्जुन ने देखा। Before I tell you creation, I want to give you a feel of who is Mahavishnu. So you're getting a feel with Arjuna's journey to महाविष्णु लोका। अभी बच्चे पता है किसने चुराए थे? महाविष्णु ने चुराए थे। हमारे कुछ ने महाविष्णु क्यों चोरी की? महाविष्णु को तो चोरी नहीं करनी चाहिए, सब तो ब्रह्मांड उन्हीं से आ रहा है, सब कुछ तो उनका है। उनको तो उन्होंने ये बच्चे क्यों चुराए? बड़ी स्पेशल बात है। तो अभी सीक्रेट निकल के आएगा कि बच्चे क्यों चुराए। Serving the topmost of all lords were his personal attendants, headed by Sunanda, Nanda, Chakra, all there. And भगवान की सारी पोटेंसीज, पुष्टि, श्री, कीर्ति एंड अजान। भगवान को खुद को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उनकी शक्ति हमेशा बोलते हैं, भगवान आपके लिए क्या करना है, आपके लिए क्या करना है। भगवान कुछ इच्छा करते हैं, वो शक्ति एकदम करके कर देते हैं।
अजा जो है क्रिएशन शक्ति है, सब कुछ क्रिएट कर देती है, पुष्टि, कीर्ति, श्री, तो सारी वो है। Then Krishna bowed down to himself in Mahavishnu. अब कृष्ण बड़े हैं, महाविष्णु बड़े, पक्का। लेकिन जब भगवान गोवर्धन खुद बनकर आए थे, तभी गोवर्धन को प्रणाम किया नहीं किया। अर्जुन का भाव खराब ना हो जाए। अगर अर्जुन को समझना है कि महाविष्णु के भी लॉर्ड हैं, तो फिर अर्जुन का साथ रस तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए वो bow down किए। Then the two of them stood before him with joined palm, but Almighty Mahavishnu smiled and spoke to them in a voice full of solemn authority. So बताते हैं, so Mahavishnu क्या सोचते हैं? My dear Krishna, by your desire, I will describe your superiority even though I am your extension. क्यों? जिससे अर्जुन का साख्य रस खत्म ना हो जाए। At the same time, however, I will certainly imply in my statement a supreme portion of your beauty, character, and power, and the fact that you are the source from which I emanate. Just see how clever I am. That in front of Arjuna, I am confidently divulging my true identity as not different from you. And then say, I brought a Brahmana's son because I wanted to see two of you. But Arjuna को बोलने के लिए क्या बोले? My expansion who descended to the earth to save the principle of reason. As soon as he finished killing the demons who burdened the earth, quickly come back here to me. अब एक क्वेश्चन आए, भगवान अगर कृष्ण जो है महाविष्णु के एक्सपेंशन है, तो महाविष्णु को ब्राह्मण के बच्चे चुराने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बोल देते आ जाओ। सोचने की बात है नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते थे कि भगवान के कृष्ण के दर्शन पाना इतनी आसान बात नहीं है। That's what आचार्य से है कि भगवान कृष्ण को देखना इतना आसान नहीं। तो महाविष्णु ने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण के बच्चे चुराऊंगा तभी भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। तो and thus instructed by Supreme Lord of topmost planet, Arjuna ascended by Om and then bowed down to there, taking the Brahmana's son with them. They returned with great delight to Dwarka by the same path they had come. There they presented Brahmana the son who was in the same infant body in which they had been lost. तो उसको देख के करके लोग अब 10 बच्चे मिल गए, 10 बच्चों को एक साथ पा छोटे बच्चे। And having seen the domain of Lord Vishnu, Arjuna was totally amazed. He concluded that whatever external power a person exhibits can only be a manifestation of Shri Krishna's mercy. अब अर्जुन सच में सोचने लगा, then why would Mahavishnu want to see his own expansion? अगर कृष्णा महाविष्णु के एक्सपेंशन तो उनको देखने की इच्छा क्या हो गई? वो तो ऑर्डर देना चाहिए वहां पे। This might be of the effect Dakshita. That means Mahavishnu has always been wanting to see Krishna and myself. अरे लेकिन द्वारका आ जाते वो देखने के लिए, क्योंकि बच्चे चुराने तो द्वारका आए थे ना करके। अब बच्चे चुराने के लिए महाविष्णु डायरेक्टली कहा थे, क्योंकि और कोई नहीं चुरा सकता जैसे महाविष्णु चुराता है। तो महाविष्णु is all pervading creator. He holds like Amalika throne. How could he not see Krishna in Dwarka? Because Krishna doesn't allow anyone to see him without his special permission. तो महाविष्णु ने फिर ब्राह्मण के बच्चे को क्यों चुराया? क्योंकि वो इतने उतावले हो गए भगवान कृष्ण को देखने के लिए कि उन्होंने बच्चों को चुरा लिया। लेकिन बाद में उसको रिवॉर्ड भी दे दिया, सारे बच्चे वापस दे दिए। तो why did he himself have to come? Because stealing out of Krishna capital was so difficult. No one except Lord Vishnu could hope to. So you must cause so much distress to Brahmana or Lord Krishna's city that Krishna would be unable to tolerate it. Then he would grant Lord Vishnu his audience. But Krishna ने बोला मैं पता ब्राह्मण के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गया जब तुम जाने वाले थे। तो जब हम देखते तो हमें समझ में आता है भगवान कृष्ण कौन है और अपने भक्तों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इससे सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? भगवान का भक्त बनना। यही भजे कृष्ण सही बड़ा चतुर। तो भगवान कृष्ण को मिलता है वो बहुत चतुर है। अब now seeing this, now we'll see how Mahavishnu creates this universe. How Mahavishnu creates the universe.
ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर लेना, पर कुछ लोगों को इतना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उसको सिंपल टर्म से बना जाता हूँ। तो पहले हमें समझ आओ 3 विष्णु होते हैं। कौन 3 विष्णु होते हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु तो आपने देखा कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड के परे रहते हैं, जिससे सारे ब्रह्मांड आते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु तो इनका नाम कारणोदक्षाय विष्णु क्यों है? क्योंकि वो कारण सागर में रहते हैं। दूसरे विष्णु कौन है? इनको 3 पुरुष भी बोले जाते हैं। तो दूसरे विष्णु कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। वो कहाँ रहते हैं? हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय। हाँ, लेकिन कहाँ रहते हैं? हमारे ब्रह्मांड में कहाँ रह रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु? सबसे नीचे। आप तिरुवनंतपुरम जाएंगे कभी भी, तो वहाँ पर जो भगवान अनंत पद्मनाभ है, सबसे रिचेस्ट लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जितना सोना उनके पास उतना सोना पूरे भारत के पास नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना सोना नहीं जितना उनके तहखाने में रह सकता। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो 3 ऑल्टर से भगवान के दर्शन लेने होते हैं, और भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। देखा किसी ने दर्शन अनंत पद्मनाभ में? कभी जाएंगे वहाँ यात्रा देखेंगे। इस साल तो गुरुवायूर जा रहे हैं, विल प्लान अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु है जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ये कहाँ रहते हैं? गर्भोदक सागर में। तो ये जो ब्रह्मांड है इसका आधा जो है गर्भोदक ओशियन है, और आधे में सब प्लैनेट्स हैं करके। और आप सैटेलाइट से वहाँ पहुँच नहीं सकते, रॉकेट भेज के वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि गर्भोदक्षिण ओशियन अर्थ के नीचे है करके। तो इट इज़ नॉट possible to reach with the scientific this thing to गर्भोदक ओशियन। तो वहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सारे जीवात्मा उनके पेट में चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है फिर से वो क्रिएशन होती है, फिर से वो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट और एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जानना। अब जो सेकंड स्कंद में, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? परमात्मा। जब देवता लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे कंस हुआ, रावण हुआ, तो देवता लोग शिकायत करने जाते हैं भगवान विष्णु से, तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर पे ब्रह्मा जी के साथ। कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में। तो वो क्षीर सागर अबोध उत्पन्न है, तो वहाँ पर सारे देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना के लिए जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 विष्णु हैं, वो सब एक्सपेंशन है। महाविष्णु से आते हैं, महाविष्णु नारायण से आते हैं, और नारायण भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, संकर्षण से आते हैं। तो ये पूरा एक्सपेंशन का ये कंसेप्ट है पूरा, करने की कैसे ये चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें शास्त्र में। अब जो सेकंड कैंटो में प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी नारद मुनि का प्रसंग आता है। नारद जी के पिता कौन है? तो एक बार नारद जी बोलते हैं अपने पिता के पास जाके, आपको लगता है आप भी किसी की तपस्या करते हैं, किसी का ध्यान करते हैं, दैट मीन्स आप सुप्रीम नहीं है। देखिए अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो ब्रह्मा जी को ही देख सकता है, भगवान को तो देख नहीं सकते। तो क्या लगेगा कि ब्रह्मा जी ही, और सबको जो सृष्टि करी है किसने करी है? ब्रह्मा जी ने। तो देखिए ऐसा लगेगा कि ब्रह्मा जी ही यहाँ पर सृष्टि के करता है, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा? सब देखिए, व्हाट डू यू थिंक? कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के करता है, इट विल अपीयर लाइक दैट। बट व्हाट हैपेंस, the Brahma ji was very honest. See, you think I am the doer, but actually Supreme Lord is the creator. I am just an instrument. I am just an instrument. और जैसे स्पाइडर जो है वेब को रिलीज करता है, कॉप वेब को, और फिर खुद में खींच लेता है, तो भगवान से ही सृष्टि आती है, भगवान में ही सृष्टि सिमट जाती है करके। सृष्टि के सारे इंग्रेडिएंट भी भगवान से आते हैं, और सृष्टि के बाद सब वापस मिल जाते हैं करके। तो समझाते हैं, फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कैसे इसकी रचना करते हैं। तो भगवान हमेशा अपनी अंतरंग शक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान ने सोचा मेरी बहिरंगा शक्ति भी अभी सोच बेचारी परेशान है, उसको भी सम देना चाहिए।
फिर भगवान भैरव शक्ति को उठाते हैं माया देवी को, फिर माया देवी पे ग्लांस करते हैं भगवान। क्या करते हैं माया देवी पे? ग्लांस करते हैं, और उस ग्लांस को शंभु बोलते हैं, सदाशिव, काल भैरव। फिर उस ग्लांस से प्रकृति जो होती है, प्रकृति जो है माया देवी, जो पार्वती भी बोलते हैं, जो शिव जी की, सदाशिव की अर्धांगिनी है, वो है माया देवी। उनके पास एक मेटीरियल होता है जिसको बोलते हैं प्रधान। जब भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है, वो प्रधान महत्तत्व बन जाता है। जिस प्रकार एक पुरुष जो है स्त्री के गर्भ में देता है, फिर बच्चा बन जाता है, ये उपमा आचार्य लोग देते हैं, और फिर वो स्त्री तो वही रहती है लेकिन बच्चा साथ में निकल के जाता है। तो माया देवी तो वो रहती है, प्रधान से महत्तत्व निकल कर जाता है, जिससे सारी सृष्टि होती है। पर ये प्रिंसिपल है, लेकिन भगवान जो है कभी प्रकृति से टच में नहीं आते। प्रकृति से टच में आने वाले कौन है? भगवान की दृष्टि। तो वो भगवान की दृष्टि कौन है? सदाशिव, काल भैरव। तो काल भैरव माया देवी के संपर्क में आते हैं, और फिर बच्चे के रूप में ये महत्तत्व निकल गया। महान तत्व, इतनी बात समझ में आ रही है? ये बहुत, देखिए ये वर्ड प्रधान, महत्तत्व, ये समझने में दिमाग चकरा जाता है। तो अगर आप 1% भी समझ लो आज के आज कैसे, तो इट्स डन, तो ज़्यादा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब ये प्रधान क्या होता है? मैं दिखाता हूँ, दोबारा पीपीटी से दिखाऊंगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अभी क्या सुन के तो समझ लो, फिर पीपीटी देख के आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं आज थोड़ा टॉपिक टेक्निकल से, मैंने पहले कहानी बताई कि थोड़ा एक लीला सुनो, थोड़ा आनंद आएगा, फिर हम थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर में जाएंगे। तो ये प्रधान, आप देखिए भागवतम का जो पहला श्लोक है, ओम जन्माद्यस्य तन्मयतरतश्चार्थेषु विज्ञानसुराते जोगारिमन्यते सर्गो मृषा। तो त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गो मृषा बोला गया, नहीं बोला गया? तो त्रिसर्गो मृषा का क्या मतलब है? त्रिसर्गो मृषा, ये सब चीज जो आ रही है इस ब्रह्मांड में 3 गुणों के द्वारा आ रही है। प्रकृति के कौन से 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा ये सारी चीज प्रकृति में आ रही है करके। अब कैसे 3 गुण से कैसे आ रही है? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जाता है। तो पहले जो गुण होते हैं, देखिए आप एक चीज देखिए, हमेशा प्रकृति के गुण चेंज हो रहे हैं। जब सतोगुण होता है तो लोग अध्यात्म की बात करने लगते हैं, जब रजोगुण होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, थोड़ा पैसा कमाओ, ये करो वो करो। अब जब तमोगुण होता है तो दूसरे को मारने की बात होती है। तो अभी कौन सा गुण बहुत तेज है हमारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में? रजोगुण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाई कंट्रीज आर नॉट फाइटिंग? इकोनॉमिक डेवलपमेंट खराब हो जाएगा। तो रजोगुण देयर, जब तमोगुण बढ़ जाएगा सब एकदम एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। दे वॉन्ट माइंड पुटिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स आल्सो। अभी रजोगुण हो रहा है तो न्यूक्लियर बॉम्ब से डरते हैं लोग, लेकिन तमोगुण थोड़ा और बढ़ गया तो एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब से विनाश करने लगेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ये कंट्रोल कौन करती है? देवी, प्रकृति। तो वो पल में दुनिया को नचा देती है, पल में ही। और उसका एग्जाम्पल क्या? कोविड आया, एक दिन में सब लॉकडाउन हो गया। तमोगुण को एम्पावर कर दिया, उससे कोविड वायरस एम्पावर हो गया, फिर सबको लॉकडाउन हो गया। तो ऐसे माया देवी जो है सब कुछ चला रही है, और हम सोचते हैं हम चलाते हैं सब कुछ। तो माया देवी बहुत पावरफुल है करके ये सब कर रही है। तो ये अब प्रकृति गुणों से सब आते हैं, लेकिन अभी गुण हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आप हर चीज देखो, क्योंकि गुण चेंज हो, एक समय है, क्योंकि ये चीज समझना कि भगवान ने काल दृष्टि डाली तब सारी सृष्टि हुई। तो अगर समय रुक जाए तो क्या होगा जीवन में? अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? We never have experience कि समय रुक जाए, कि समय चलता ही रहता है। समय चलता ही रहता है, लेकिन अगर समय रुक जाए तो सोचिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
हमें पता ही नहीं लगे कुछ हो गया, सब कुछ तो रुक गया। ना तो एटम मूव करेगा, ना हमारी सांस मूव करेगी, ना हमारा हाथ मूव करेगा। तो दैट मीन्स काल से ही सब कुछ चल रहा है। अगर ये काल ना हो, ये काल से ही शरीर बनता है, काल से ही मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं काल कब आने वाला है करके। अभी ट्रेन क्रैश हुआ तो कितनी दुख की बात है कि ड्यूटीज मतलब कई उसमें 2-3 ड्यूटीज भी थे, हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा देखो, उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। और बेचारे वो बीजे मेडिकल कॉलेज के बच्चे, वो तो अपना मैच में बैठे थे, उनको क्या पता कि ऊपर से कुछ वॉर भी नहीं हो रही थी। देखो पाकिस्तान की वॉर हो रही, सोचा कोई बॉम्ब आके गिर गया सिर पे, तो अपना ही प्लेन आके सिर पे गिर गया, तो उनका क्या दोष था। तो काल जो है बहुत बड़ा है, कब किसका काल कहाँ आके बैठ जाए कुछ पता नहीं। काल की गणना बहुत जो है वो है, तो काल से ही सब कुछ चल रहा है करके। तो इसमें सृष्टि बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान किसका होगा? काल का। लेकिन वो काल की दृष्टि कहाँ से? भगवान महाविष्णु से। क्या होगा? थोड़ा ठीक है, मतलब पास जा रहा हूँ। 2 बार लेना पड़ेगा आपको। हाँ 2 बार लेना पड़ेगा आपको। नहीं, आपको अभी पीपीटी से दिखाते हैं। तो ये कंसेप्ट थी, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये चीज कौन समझा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। भागवत में सेकंड, भागवत 40 से होती है, और फर्स्ट कैंटो हो गया ना हमारा। तो सेकंड सुखदेव गोस्वामी ने कौन से स्कंद से बोलना चालू किया? सेकंड स्कंद से। तो भागवत कहाँ से चालू होती है? यहीं से चालू होती है। और ये जानना क्यों जरूरी है? तो बोले प्रभु इतना कहाँ टेंशन लेने का, ऐसे क्यों जानना? देखिए हम कौन है? शरीर है, आत्मा है। तो ये शरीर कैसे बना है? जब हम जानते हैं तो शरीर से डिटैच हो जाते हैं, इसमें जानने की जरूरत है। हमारी आसक्ति तो ये ब्रह्मांड नहीं है ना, तो उस आसक्ति को मिटाने के लिए ये ब्रह्मांड कैसे बना है जब समझते हैं तो आसक्ति जाती है। और मेन चीज ये नहीं कि ब्रह्मांड कैसे बना है, मेन चीज भगवान ने कैसे बनाया। इस सब चीज के कभी हमको क्या लगता है हमारे जीवन में कंट्रोल भगवान कृष्ण शायद नहीं देख रहे, क्या हो सकता है भगवान के कंट्रोल में चीजें नहीं है, ऐसा डाउट आता नहीं आता कई बार। लेकिन आप इसको समझ रहे सबको तो भगवान के कंट्रोल में पूरा फुल कंट्रोल में करके, तो इसलिए सृष्टि को जानना बहुत जरूरत है। और ये कंसेप्ट इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, इसको बहुत समय में जब आप भक्ति करते हैं, भगवान विधि करते हैं, तभी समझ में आती है। ऑनेस्टली करें, कई बार सुनते हैं, कई बार बोलते हैं, तब धीरे धीरे ये चीजें समझ में आती हैं करके। अब जो है इसे साइंटिस्ट समझ नहीं पाते इस बात, उनको तो केवल लैब में एक लॉजिक चाहिए और एक्सपेरिमेंट चाहिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दैट। तो अब भगवान ने टाइम फैक्टर वो बन गया। तो टाइम जो प्रधान क्या है? जब तीनों गुणों में कोई एजिटेशन नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान। तो जब भगवान काल दृष्टि करते हैं तब गुण एजिटेट होते हैं, और सबसे पहले कौन सा गुण एजिटेट होता है? सतोगुण। सबसे पहले सतोगुण एजिटेट होता है, और ये सतोगुण एजिटेट होकर महत्त्व होता है। अभी रजोगुण तमोगुण नहीं आए, फिर उसमें तमोगुण एजिटेट होता है तो अहंकार बनता है। तो पहले महत्त्व आता है, फिर अहंकार आता है, अब फिर अहंकार से 24 एलिमेंट्स आते हैं। अब ये 24 एलिमेंट्स क्या है? क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दिस 24 एलिमेंट्स? तो सांख्य का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? 24 एलिमेंट। एंड थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो ग्रास विल बिकम इजी। तो जी सब थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बात? वैसे शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ।
तो अब 24 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर आप शरीर नहीं आप आत्मा हो तो फिर शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये जानना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि हम मन को आत्मा मान बैठते हैं। हमारी दिक्कत क्या है, हम मन को ही आत्मा मान के बैठे रहते हैं और इसलिए मन हमें परेशान करता है। देखो, अब एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आपको कोई बोले आप काले हो, गोरे हो, गिट्टी हो, अभी इतना फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं फील कि अब कोई आपके रूप स्वरूप पे कुछ बोले तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। पहले बहुत फर्क पड़ता था, थोड़ा भी बोल दिया तो बहुत एकदम, जो पहले मुझे किसी ने बोल दिया तुम कमजोर हो, कमजोर तो शरीर कमजोर है पर आत्मा तो पावरफुल है। लेकिन कोई हमारे मन के बारे में बोल दे, कोई हमारे एटीट्यूड के बारे में बोल दे, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अकल कम है, तो अभी चुपता नहीं चुपता है। पर क्या हम अकल है? क्या हम बुद्धि हैं? तो आत्मा है हम तो, न बुद्धि है, न मन है, न अहंकार है। और अहंकार बहुत चुपता है। घर में जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा क्या चुपता है? अहंकार को चोट आती है करके। सारे परेशानी तो अहंकार की है नहीं घर में, अगर होती है तो एक दूसरे को तीक्ष्ण वचन होता है, क्या वॉइस में भी कभी डिवोटीज का करेक्शन दे देते हैं योगा में, तो बहुत चुपता है। लेकिन कभी सोचता क्या चुपता है? ये अहंकार है जो चुपता है। तो जब हम समझेंगे कि हम कौन नहीं है, तब हम समझेंगे हम कौन ही सांख्य का पथ है। जैसे थोड़ा बहुत सांख्य जितना भागवत में लिया उतना समझना चाहिए। हमें पीएचडी रिसर्च नहीं करना है, लेकिन थोड़ा समझना चाहिए। और डिफिकल्ट होता है। To the degree we are engaged in self-gratification, it is difficult to understand. But by knowing this, we get out of self-gratification. क्योंकि आसक्ति होती है भौतिक प्रोडक्ट्स में। अब देखो, जो है जीव जो है केवल आत्मा भगवान से बिछड़ के आता है। तो सबसे पहले इस प्योर आत्मा पे एक लेयर आती है चित्त की। ये देखो चित्त की लेयर। अनादि को लैप्रिशिएट है, अनादि को समाइटी खड़गपुर। फिर चित्त के बाद लेयर आती है फॉल्स ईगो, अहंकार। तो सबसे पहले क्या बनता है? महातत्व बनता है, मैंने बताया। तो ये महातत्व से चित्त आता है, अवेयरनेस। देखिए, अब सोचिए, अगर आत्मा आध्यात्मिक है तो हम भौतिक जगत को कैसे समझ पा रहे हैं? हमारी नेचर इस भौतिक जगत से कंप्लीटली परे है, तो हम इस भौतिक जगत को कैसे समझ पा रहे हैं? समझिए इस बात को। क्यों? एक अवेयरनेस है। कोई मूर्छित हो जाता है, उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती नहीं हो जाती है करके। तो ये अवेयरनेस सबसे पहले चीज बनती है, अवेयरनेस महत्त्व, जिसमें अवेयरनेस होती है, चित्त होता है। See, all these elements are different to different souls. That will come later. फिर दूसरी लेयर आती है अहंकार। मैंने बताया तमोगुण में अहंकार बनता है, तो फॉल्स ईगो होती है। तो पहले जब आप उठते हो सोते, तो पहले आप अवेयर होते हो, फिर अहंकार आता है, अरे मैं ये हूँ। सुबह तो सुबह उठते हैं तो पहले अवेयरनेस आती है, हम उठ गए। फिर कौन है, हाँ मैं ये हूँ, मेरा ड्यूटी ये है। तो पहले अहंकार आता नहीं, आता करके फिर हमारी बुद्धि, फिर हमारा मन, ये करना है, वो करना है, पुराने इंप्रेशंस आते हैं, आज ये करना है। तो आपको कैसे पता सुबह उठ के क्या करना है? सपोज हम सुबह हर सुबह भूल जाए कि हम कौन है और हमें क्या करना है। जब हम सुबह उठते हैं तो रात को जब सोते तो भूल जाते हैं हम कौन है और क्या करते हैं। सुबह उठो तो भी भूल जाओ कि कौन है, क्या करना है। एंड एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन चित्त हमें अवेयर करता है, अहंकार में बताता है, अरे तुम
एम्प्लॉय हो, ऑफिस जाना है, तुम डिवोटी हो, जब करना है, वो प्योर अहंकार है, वो ट्रू ईगो है कि अभी सुबह उठ के जब करना है। वो उसको भी थोड़ा समझ में टाइम लगता है ना, सुबह उठते ही करके आलस आता है, क्लॉक उठने नहीं देती, अलार्म क्लॉक उठ नहीं पाते हैं करके। नहीं, वो तो ट्रू ईगो है। तो देयर इज अ फॉल्स ईगो एंड द ट्रू ईगो। तो हमें जब करना वो ट्रू ईगो है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर जनरली फॉल्स ईगो ही रहता है, ट्रू ईगो तो बहुत कम रहता है। हाँ, तो फॉल्स ईगो के ऊपर ये सिर्फ किसकी लेयर है? माइंड की। फिर माइंड में आपको इंप्रेशंस आते हैं कि अरे हाँ ये करना है, वो करना है। फिर आप बुद्धि से सोचो कैसे करना है, फिर बुद्धि लगा दो कैसे सोचना है। फिर बुद्धि जो है इंद्रियों को बोलती है, अरे आँख से ऐसे देखो, कान से ऐसे सुनो, नाक से ऐसे सुनो। अच्छा, और ये जो सेंसेस होते हैं ना, ये टंग, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, देखिए ये सब सोचने से क्या होता है, हमारी भौतिक जगत में आसक्ति कम हो जाती है। जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति अपने आप, जब आप समझते हो आप कौन हो, सारे जीवन के दुख अपने आप चले जाते हैं। आप कितने से बड़ा दुख भी हो जीवन में, जब आप ये सोचने लगते हैं आप कौन है, दुख अपने आप भाग जाता है। इसलिए कोई मर भी जाता है घर में, तो भगवद गीता पढ़ो कहते। तो कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, या कितनी भी बड़ी टेम्पटेशन हो, कितनी बड़ी टेम्पटेशन हो, वो सब उड़ जाता है जब आप समझते हो आप कौन हो करके। तो इसके लिए समझना जरूरी है। लेकिन हम कौन हैं ये एक लेवल, हम शरीर में आत्मा है, पर एक्चुअल नॉलेज क्या है, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के भक्त हैं। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। हाफ अंडरस्टैंडिंग में माया नहीं जाती है, माया फिर भी पकड़े रहती है। फुल अंडरस्टैंडिंग में फिर माया जाती है। देवी ईश्वर में माया माँ में भी प्रबंध। अब माया को जान भी लो, फिर भी माया को कर नहीं सकते। लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है, लेकिन माँ में भी प्रबंधन से माया नेता प्रबंधित है। जब आप भगवान की शरण लेते हो तब माया जाती है, लेकिन पहले माया को जानते हैं तब भगवान की शरण भी लेंगे ना। तो पता नहीं माया ही है तो भगवान की शरण कैसे लेंगे। कल एक डिवोटी ने बहुत अच्छा रियलाइजेशन बताया कि हम सुनते हैं कि हमारे 5 घोड़े हैं, काबू नहीं आते, लेकिन हमसे लगता है हम काबू कर लेंगे, लेकिन जब माया पे एकदम डिशुम करती तब समझ में आता है ये घोड़े बहुत भागल हैं। 5 सेंसेस जो है घोड़े बहुत भागल हैं। और ये पता है ये एक्सटर्नल सेंसेस नहीं है। दिस इज नॉट दिस नोज, दिस आईज, दिस ईयर्स, दिस आर इंटरनल सेंसेस। दिस आर इंटरनल सेंसेस। कैसे इंटरनल सेंसेस है? ये मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाते हैं। अगर आपने इस जीवन में बहुत सारा टीवी देखा है, आपने इस जीवन में बहुत टीवी के आदी हो गए ना, तो जब नेक्स्ट बर्थ में बचपन से आप स्मार्टफोन देखते रहोगे, क्योंकि आंखों को स्क्रीन देखने की आदत लग गई है। और अगर मांस खाने की आदत है तो बचपन से बच्चे को फिर मांस खाने को मन इच्छा होगी बचपन से, क्योंकि ये सेंसेस का टेस्ट जो है ना वो जाता नहीं है मृत्यु के बाद भी, ये जाता है। So that is why you have to spiritualize your senses before you go back to normal. No material taste should remain in eyes, nose, ears, and all spiritual taste only is there. Then only person go back to God. जैसे वो दिन सेंसिटिफिकेशन नहीं करने का है, प्रभुजी क्यों अहमद करते हैं कई बार, क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी का ही पूरा फंक्शन है ये सब। तो इसमें बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो मैं आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूँ कि प्रभुजी अपनी किताबों में बताया डोंट डू सेंसिटिफिकेशन, तो इतना क्या बोलते हैं करके, तो बोलते हैं कि डोंट बी अटैच्ड, डोंट हैव मेटल डिजायर, देन यू कैन गो बैक टू गॉडहेड। क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां जो होती हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती हैं, और उसमें के अटैचमेंट्स भी उनके साथ जाते हैं। पर जब आपके भौतिक इंद्रियों के अटैचमेंट्स प्यूरीफाई हो जाते हैं और स्पिरिचुअल हो जाता है सब कुछ, स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स हो जाती है। स्पिरिचुअल अटैचमेंट में आपको भगवान को देखने का अटैचमेंट हो गया है, भगवान का कीर्तन सुनने का अटैचमेंट हो गया है,
विच इज मच ईजियर। तो ज्ञानी कि आपको सारे अटैचमेंट को छोड़ दो, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है करके। लेकिन भक्ति बात है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति इतना अटैच हो जाओ कि भौतिक चीज़ें अपने आप पीछे हो जाए। तो अगर आप भगवान की खूबसूरती देखोगे तो जीवन में और कुछ खूबसूरती देखने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्रसाद खाओगे तो और कुछ टेस्टी खाने की जरूरत नहीं है। भगवान का कीर्तन सुनोगे तो कुछ मूवी का म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है स्पिरिचुअल अटैचमेंट डेवलप करने का करके, तो ये डरने की बात नहीं, सब छोड़ना है, नहीं, सब जोड़ना है। भगवान की भक्ति को और अच्छे से दृढ़ करना है, बढ़ाना है, भक्तों का संग लेना है। तो उससे क्या हो जाता है, ये पूरा हमारा जो है ये पूरा ये हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाते हैं ये सेंसेस। और इसका एग्जांपल कि अगर आप आँख भी बंद करोगे तभी आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है तो आपको आंखों में सामने दिखेगी नहीं दिखेगी? कोई अच्छी सीन की कहीं अच्छी जगह गए एकदम मजे आपको याद आ जाएगा। तो मन की आंखों से हमको दिखता है। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, फिर 5 ग्रॉस एलिमेंट। तो ये जो शरीर को देख रहे हैं तो सिर्फ पंचभूत का शरीर है, बाकी बहुत कुछ तो अंदर पड़ा हुआ है इसके, जो आत्मा नहीं है। और 5 तन मात्रा जो है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। तो ऐसे करके 24 एलिमेंट्स ये बनते हैं। अब इसमें जो है मन जो बनता है फॉल्स ईगो इन मोड ऑफ गुडनेस से आता है। अहंकार आया, फिर अहंकार से 24 एलिमेंट्स आते हैं, मैंने बताया नहीं बताया? तो मन कहाँ से आता है? फॉल्स ईगो इन मोड ऑफ गुडनेस। तो जब अहंकार सतोगुण से उत्तेजित होता है तो क्या बनता है? मन। इसलिए मन शांत रहना चाहता है। मन क्या चाहता है? शांति। रजोगुण से क्या होता है? बुद्धि और इंद्रियां। इसलिए बुद्धि हमेशा प्लान करना चाहती है और इंद्रिय हमेशा एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि वो रजोगुण से आया हुआ है। और हमारा जो पंच भौतिक शरीर है ये कहाँ से आता है? तमोगुण से। इससे शरीर क्या होता है? सोना चाहता है। इसलिए हमारा परेशान नहीं रहते हैं, सेंसेस एंजॉय करना चाहते हैं, शरीर सोना चाहता है और मन पीसफुल होना चाहता है। इसलिए जीवन परेशान रहता है हमारा। Senses want to enjoy, body wants to sleep, and mind want to be peaceful. इसलिए जीवन हमारा थोड़ा परेशान है। लेकिन जब आप सतोगुण में आ जाते तो एंजॉयमेंटलिटी चली जाती, तो आप पीसफुल हो पाते। लेकिन रजोगुण में रह के आप पीसफुल होना चाहते हो, पीसफुल होते नहीं हो, क्योंकि इंद्रियां जो है उनको रजोगुण में बांधे रहती हैं। और तमोगुण में बस केवल सोने का मन करता है। इसे सुबह आना, संडे सुबह आना, तमोगुण को जीत कर मन को शांत बनाने के बराबर। तमोगुण और रजोगुण को जीत के फिर मन को शांति मिलती है। इसलिए आप आएंगे तो कितनों यहाँ के बहुत शांति महसूस होती है सुबह आकर, क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति इन तीनों गुणों के परे है। तो उसका अनुभव हमको होता है जब हम भगवान की मंगल आरती में आते हैं। तो हमको टारगेट बनाना चाहिए, हर संडे थोड़ा जल्दी जल्दी आना चाहिए करके। एक संडे तो ब्रह्म मुहूर्त में बिताना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय के पहले, और सूर्योदय का टाइम अभी क्या है? 6 बजे। तो मैं 6 बजे के पहले भक्ति करना चाहिए, वो हमारा टारगेट होना चाहिए आने का करके। तो धीरे धीरे मैं उस टारगेट से आना चाहिए। तो देखिए जीवन में और बहुत सतोगुण डेवलप होगा। जो मैं बोला आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे देखो। अभी पहले कभी सोचा कि आप सुबह 8 बजे आओगे, क्लास अटेंड करोगे। 8 बजे तो उठ के इंसान का ब्रशिंग होती है, 10 बजे होती है संडे को, पता नहीं स्वागत है ना। तो पूरा शेड्यूल रहता है। मैं हॉस्टल में जब था मैं 4 बजे उठता था और देखता कुछ बच्चे सोने जा रहे हैं। मैं 4 बजे उठ के प्रोग्राम को आता तो कुछ बच्चे सोने जा रहे होते थे उस समय। यहाँ निशा सर बोलता ना। तो धीरे धीरे आपको लाइफ का शेड्यूल बदलना है। 10 बजे सोना है, 4 बजे। तो देखना जीवन में और बहुत एकदम सतोगुण का विकास होगा, मन अपने आप पीसफुल हो जाएगा। तो ये सारे 24 एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये सारे 24 एलिमेंट्स आते हैं तो आपको
ये चीज़ समझ में आ गया ना 24 हैप्पीनेस। तो अगर आप सोचेंगे आप कौन है कौन नहीं है, तो ये थोड़ा एनालिसिस लगता है। तो देखिए यहाँ कारणोदक्षाय विष्णु है, इनसे पहले क्या निकला प्रधान, फिर हमने बताया महातत्व आया, फिर आया अहंकार। अब इस अहंकार से क्या आया फिर, ठीक यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अच्छा देख रहे हैं। तो ये अहंकार से क्या आया, जो अहंकार के रजोगुण से, अहंकार रजोगुण में आया 5 ग्रॉस एलिमेंट्स एंड 5 टन मात्रा से बॉडी आई हमारी 5 ग्रॉस एलिमेंट। बॉडी किससे बनी हुई है, 5 महाभूत से। 5 महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर तन मात्रा, साउंड, टच, एयर, ईथर। अब ये कैसे बनते हैं, ये भी पूरा वो है, ये भी पूरा इसका एनालिसिस है। सब कुछ कैसे आता है, पहले साउंड आती है, फिर साउंड से ईथर बनता है, ईथर से टच, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच आ जाता है तो एयर आती है, हवा। वायु से फिर फॉर्म आती है, फॉर्म से अग्नि आती है, अग्नि से टेस्ट आता है, फिर टेस्ट से वाटर। अब देखिए वाटर में टेस्ट होता है, फायर में कोई टेस्ट नहीं होता है। और अर्थ में फिर वाटर से स्मेल आती है, स्मेल से अर्थ में स्मेल होता है, फायर में कोई स्मेल नहीं होता, वाटर में भी स्मेल नहीं होती है। वाटर में आप अर्थ का मिक्सचर डाल देते हो तब स्मेल आती है, एंड नेक्स्ट यू नो कि कुछ गड़बड़ है, कोई स्मेल नहीं आ रही तो ठीक है, राइट। पानी में स्मेल आ रही है तो प्रॉब्लम है नहीं, करके तो उसमें मिक्सचर हो गया है। पानी है तो स्मेल नहीं आएगी करके। तो एंड एयर में टच होता है, साउंड में टच नहीं होता। तो ऐसे कर करके भगवान की दृष्टि पाप होता है, और साउंड से ही पूरा जगत अनावर्ती शब्द। तो ये मेटल एग्जिस्टेंस कैसे बनी, सारे भौतिक एलिमेंट कैसे बने, साउंड से। तो साउंड से सब वापस जाएंगे और हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओंकार की साउंड से ही ये सब चीज बनता है, प्रणव। तो भगवान की स्पिरिचुअल साउंड जो हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें ओंकार ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो जो सब कुछ इससे आया वो वापस में चला जाएगा, मीन्स हमारा आध्यात्मिक शरीर डेवलप होगा। तो इसमें स्पिरिचुअल साउंड से ही इस सब सृष्टि की पूरी उलटती है। इसलिए भगवान के नाम का जप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप भगवान का नाम का जप करते हैं तो जितनी भी भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, ये सब प्यूरिफाई होकर स्पिरिचुअल हो जाता है। इसलिए अटेंटिव जप करना बहुत जरूरी है। हम जप तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो फिर मन आध्यात्मिक नहीं होगा, मन भौतिक रह जाएगा। तो जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान का नाम मन में जाना चाहिए, भगवान को सोचना चाहिए। फिर यही जो है जाकर पूरे हमारे सूक्ष्म शरीर को ये प्यूरिफाई कर देता है और स्पिरिचुअल बॉडी डेवलप। जैसे अजामिल का आपने सुना ना स्टोरी, अजामिल जब छूट गया फिर कहाँ गया वो, हरिद्वार। फिर कुछ साल भक्ति करी, फिर विष्णु को तो देने आया अजामिल को, वो एक चतुर्भुज रूप में वो अजामिल वैकुंठ चले गए। फिर क्यों, उनको चतुर्भुज रूप तैयार हो गया। तो जैसे आप लोग जब कर रहे हो तो एक दिन आपका भी चतुर्भुज या द्विभुज रूप गोलोक वृंदावन के हिसाब से तैयार हो गई, उनको दे। In few device session, Rajan was telling you develop spiritual body. Then when I am doing cycle also, I am learning that some spiritual body. उन्होंने realize कि ऐसा इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है। You have to do nice भक्ति। तो जैसे अजामिल दे 4 hand डेवलप हो गया, you went to different tasks. सब डिवोटीज के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप गोलोक वृंदावन जा रहे हैं तो आपको 2 hand नहीं जाते, based on your स्वरूप। somebody स्वरूप में भी गोपी, somebody स्वरूप में भी गोपा, somebody स्वरूप में भी anything, any Sarup is there, you go in the original Sarup to the spiritual world. In Vaikuntha, you generally go in a 400 Vaikuntha form, Sarupya. It's called Sarupya. You go into that. Interesting, like that, sir? Or should I stop there?
फिर पैशन से आती है इंटेलिजेंस, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 वर्किंग सेंसेस, एंड गुडनेस से आता है मन। तो ऐसे करके 24 एलिमेंट्स पूरे आते हैं। जो कौन नहीं है, हम नहीं है। ये 24 एलिमेंट्स कौन नहीं है, हम नहीं है। अच्छा, एक एलिमेंट और बनता है, वो क्या? हाँ, अच्छा एक चीज सोचिए, देखो 24 एलिमेंट नहीं है, फिर हम अपने आप को 24 एलिमेंट क्यों मानते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया, 5 लेयर इग्नोरेंस सॉफ्टवेयर, 5 लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो आपको इल्यूजन में डाल देता है, यू हैव दिस बॉडी। ब्रह्मा जी को स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा। देखो, अगर आत्मा शरीर नहीं है तो फिर अपने को शरीर क्यों मानते हैं? बेवकूफ़ी है नहीं है? और सुनने के बाद भी नहीं समझ में आता हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है? हाथ उठाइए। कोई नहीं समझता। समझते नहीं समझते, तो हाथ उठा देंगे। लेकिन भूल जाते हैं ना, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया है, पर रियलाइजेशन अभी तक नहीं आया कि हम शरीर नहीं। आपको रियलाइजेशन आ गया तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अभी जीवन मुक्त है नहीं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं करके। तो लेकिन इतना सुनने के बाद भी बार बार क्यों भूल जाते हैं? ये ब्रह्मा जी का स्पेशल प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है? स्पेशल प्रोग्रामिंग किया है। और स्पेशल प्रोग्रामिंग में 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स, और ऐसा उसको रडार भी नहीं पकड़ पाती है। सुपरसोनिक मिसाइल टॉकिंग अबाउट, इसको रडार भी ना पकड़ पाए। तो ऐसा सुपरसोनिक ब्रह्मा जी का ये 5 लेयर का सॉफ्टवेयर है। कोई भी इसको, कोई भी मंत्र साइंटिफिक डिस्कवरी कुछ नहीं पकड़ पाती है। साइंटिस्ट खुद बेवकूफ बन जाते हैं इन 5 लेयर्स को लेके, इतना इनका पावर है। तो ये क्या है? तमाम, मोह, महामोह, तमिश्र, अंधतमिश्र। तमा है आप भूल जाओ आप कौन, आप आत्मा हो। मोह है आप ये समझो आप शरीर हो। महामोह क्या है? आप अपने रिलेटिव्स को भी अपना मान बैठो, अपने धन दौलत रिलेटिव्स को भी अपना मान बैठो, वो क्या है? महामोह। शरीर को अपना मान बैठो, मोह। तमिश्र में जो चाहिए वो नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, तमिश्र। अनतमिश्र में फियर ऑफ डेथ। तो ये 5 लेयर्स हैं। इसके ब्रह्मा जी ने वेदों को भी दिया है 5 लेयर इग्नोरेंस हटाने के लिए। तो इन 5 सॉफ्टवेयर के कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति गुरु को समर्पण करता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, उसको ही ये 5 लेयर से छुट्टी मिलती है। इसलिए बिना गुरु के भक्ति भी नहीं होती। क्यों? हम अपने आप को शरीर मान के भक्ति करेंगे तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। लेकिन जब हम गुरु को समर्पण करते हैं तभी ये अंधकार निपटता है, तभी सच में भक्ति चालू होती है। इससे गुरु सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, कि हम गुरु के बताए हुए आदेश अनुसार भक्ति करें, मन माने तरीके से ना करें। उसमें ही इन 5 अंधकार वृत्तियों से छूटने की शक्ति होती है। ऐसी भक्ति नहीं, वरना आप टीवी में बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर बुरी आदतें भी हैं साथ में। क्योंकि वो अंधकार की वृत्ति नहीं छूटी है, जो गुरु को समर्पण करने से ही अंधकार की वृत्ति छूटती है। तो 2 पीपीटी दिखाए, अभी लास्ट पीपीटी। और अगर आप 10% इसको याद कर लें और सक्सेस से आज के सेशन में 10% से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे जनरली। और ये सब भागवतम है पूरा। अगर वर्ष जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं पूरा कॉम्पैक्ट में 4-5 चैप्टर का एक साथ दिखा रहे हैं।
फिफ्थ चैप्टर से पूरा यही चालू होता है, सेकेंड कैंटो। तो 5th से 9th चैप्टर तक पूरा यही बताया गया, लेकिन वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो सर को बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान के द्वारा होती है उसको बोलते हैं सर, जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग, सर्गा विसर्गा। तो सब कुछ राधा कृष्ण से निकलता है। सो ये डेटीज पता है कौन है? किसी को पता है कौन से डेटीज हैं? ओके, कौन से डेटीज हैं? हाँ, राधा कुंज बिहारी पुणे। तो फर्स्ट एवर deity I took darshan in ISKCON was this. So I came first time to an ISKCON temple was 2005 in Pune. So that was a very small temple, Radha Kunj Bihari. Then MVCC came in 2013. So first 2005 I took darshan of the deities here of Radha Kunj Bihari. Very sweet deities. So कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। So ये महाविष्णु है। अच्छा, ये मत सोचिए कि महाविष्णु का साइज कई यूनिवर्स से बड़ा साइज है। सीड फॉर्म में सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, सीड फॉर्म में निकलते हैं फिर एक्सपेंड होते हैं। अब महाविष्णु सांस लेते हैं यूनिवर्स निकलता है, सांस छोड़ते हैं यूनिवर्स निकलता है, सांस लेते हैं यूनिवर्स वापस आ जाता है। तो सोचिए हम कितने छोटे से। हम सांस लेते तो कुछ नहीं होता। कोई आपसे आदमी कहना भगवान बन जाता है, भगवान सांस लेते तो पूरा ब्रह्मांड बनता है, हम सांस लेते तो मच्छर भी नहीं बनता। So Lord Shri Krishna explained himself as Mahavishnu for creating innumerable universes. And whole universe is compared to a single mustard seed in a bag full of, तो कई सारे अनंत कोटि, कृष्ण कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। दैट इज अ टाइटल फॉर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इतने बड़े। इसका क्या मतलब है? Like a monkey putting a spell and trying to understand the thing. We are trying by our own observation कि what is mean. Our effort is like this or not? Suppose monkey को एक laptop दे दो, what will he do? He spoil it only. He won't able to do any internet work. You can't train a monkey with it. That's our situation. But if we hear from the scriptures what is what, then we can understand. वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, आज का डिस्कशन नहीं है वो, तो हमने रख दिया है। राम कृष्णा विष्णु दे आर वन पर्सन होते, वन पर्सन इन डिफरेंट मोड। तो अब भगवान नारायण प्रकृति पे पूरा एकदम दृष्टिपात कर रहे हैं, और ये दृष्टि जो है शंभु है। So Radha Lakshmi is अंतरंग शक्ति, दुर्गा देवी is बहिरंग शक्ति। तो शिव एंड दुर्गा मदर एंड फादर ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड। जिनको मेटेरियल वर्ल्ड में रहना है वो शिव दुर्गा की पूजा करते हैं, और जिनके मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाना है वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। पर कोई शिव जी के पास किसी भौतिक इच्छा के पास नहीं जाता, तो शिव जी विष्णु जी के पास नहीं जाते। वैष्णव नाम So 5 elements are making up layers covering them. 18 other elements are in an undifferentiated, uncontaminated state called prana, and not enters with a time factor. So the woman cannot produce children unless impregnated by a man. Matter nature cannot produce or manifest anything unless impregnated by the supreme Lord. भगवान की दृष्टि पड़ती है। मैंने एग्जाम्पल दिया प्रधान प्रकृति और मातृत्व। तो Maya Devi becomes pregnant, that is the state of Prakriti, and then she delivers Mahatattva, the advance of the Lord. तो आपस के परपोर्ट में आता है। अब क्या होता है? तो अभी तक हमने तो बात की, वो तो अब समझ आएंगे कि कैसे 24 एलिमेंट्स बने। अभी ब्रह्मांड कैसे बना? ठीक है, एलिमेंट्स तो बन गए, लेकिन ब्रह्मांड कैसे बना? तो भगवान की कार्य शक्ति सारे 24 एलिमेंट्स के गोले में बना देती है।
एक गोले में बना देती है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। फिर इस ब्रह्मांड में क्या होता है, फॉल्स ईगो से माइंड, इंटेलेक्ट आता है, 24 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। फिर ये सब अंडे में जाती है, गर्भदशाएं विष्णु आते हैं ब्रह्मांड में। जब तक गर्भदशाएं विष्णु नहीं आते तब तक कुछ नहीं होता, सारे एलिमेंट्स ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। अच्छा, जब महाविष्णु ग्लांस करते हैं तो उस समय सारे जीवात्मा भी उनके शरीर से उस महत्व में जाते हैं। फिर उस महत्व से एक इल्यूजन ब्रह्मांड में आते हैं, किसके द्वारा, गर्भदशाएं विष्णु के। जब कुछ नहीं था, हम लोग कहाँ पड़े हुए थे, पहले महाविष्णु, गर्भदशाएं विष्णु के पेट में। फिर वहीं से ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा जी के थ्रू सारे जीव फिर सृष्टि पाते हैं। तो हम लोग ब्रह्मांड में कब आए थे, जब गर्भदशाएं विष्णु आए थे, उनके साथ हम आए थे। हम सब लोग बैठे थे उसमें। अच्छा, all souls in the material world currently were in the womb, in the body of Garvadakshaya Vishnu, some total of all the जीव, और सब, और कुछ क्रिएशन नहीं थी, they all were sitting. And each and every universe, the same Mahavishnu enters as Garvadakshaya Vishnu and lays on Anantashesha. All living beings created in the womb of that Mahatattva are divided in the all universes with the incarnation of Garvadakshaya Vishnu, and all of them lie in his navel. सब कहाँ हैं, गर्भदशाएं विष्णु की नेवल में है। हम बीजा पदार्थ, and all of them wait till the time Brahma is born, and first ब्रह्मा जी आते हैं नेवल से भगवान का, और पहला हैंडशेक होता है ब्रह्मा जी का। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अब ये ब्रह्मा जी देखिए, आप इनको ऐसे पूरा ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को पहले देखे नहीं भगवान है नहीं है, फिर उन्होंने तपस्या करी 100 साल तक, 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक, तब भगवान थे, तब भगवान उन्हें बोलना चालू किया। तब भगवान ने बताया तुम क्या करो, तो भगवान ने कभी चतुश्लोकी भागवत पढ़ी। अभी जब भागवत पढ़ने तो बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान ने कौन सी भागवत बोली थी ब्रह्मा जी को, चतुश्लोकी भागवत। वही चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को 3 चैप्टर्स में बोली, 4 चैप्टर्स में बोली। वही नारद मुनि ने व्यासदेव को बोली, वही व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बोली, और वही भागवत हम पढ़ रहे हैं। जब आप ले जाते हैं ना 12 घंटे अपने घर पे, इतना बड़ा दिखता है, तो भगवान ने 4 वर्ष में निपटा दी, लेकिन परंपरा में आते आते वो कितना बन गया है। परंपरा इफेक्ट, 4 वर्सेस एक्सपेंडेड इनटू एक भागवतम साइड स्कूटी पे भी ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है घर पे। तो अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो भद्र पूर्णिमा में बोलते हैं कोई भागवतम किसी को गिफ्ट करता है तो उसका बहुत पुण्य माना गया है। तो एक दूसरे को भी गिफ्ट कर सकते हैं, और भागवतम ले सकते हैं बेसिकली, क्योंकि घर में भागवतम रखने का मतलब है भगवान की डेटी को रखना, क्योंकि डेटीज के साथ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो भागवतम के साथ इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो इजी वे टू कीप द डेटी इन योर होम, कीप शी मस्ट भागवतम, और रख के थोड़ा पढ़ भी लीजिए। So from the navel of Garvadakshaya Vishnu sprouted a lotus flower effulgent like 1,000 living sun. This lotus flower is a reservoir of all conditioned soul, and the first living entity who came out of the lotus flower was Brahma. And then the universal form of the Lord comes. So it's सब creation हो गया। So in spiritual world there is no creation and destruction. In material world there is creation and I think it will take one more session, वरना बहुत ज़्यादा indigestible हो जाएगा। But Krishna is the source of all Vishnu, Brahma is one leader state. Then Shri Krishna Vishnu, he expanded super soul. So finally from Krishna comes Mahavishnu, Garvadakshaya Vishnu and Shri Krishna Vishnu.
And if you know now 14 planetary system comes from Brahmaji. He divides one planetary system into first 3, then 3 into 14. So 14 bhuvan मान लेना you heard. So we are on Bhuloka. Then between Swaloka and Bhuvaloka is Bhuvaloka, where the Yakshas, Ghos, Kinnaras, all this stay. Then Swarloka is the heavenly planetary system. Mahaloka, where Vanprasthas go. Rishi like Dhruvo, others stay in Mahaloka. Then Janaloka, then Tapaloka, where Chatushkumara, Navyogendras, they stay. Nestic Brahmacharis go to Tapaloka. Then a living entity doing for 100 births his occupational duty perfectly, according to one ashram dharma, goes to Satyaloka, the planet of Brahma. Beyond that, you go to Vaikuntha. By doing bhakti. See, this all loka you go more by doing varnashrama duties and tapasya. But you go to Vaikuntha by doing bhakti. But qualifications are mentioned to go to the different lokas, basically. You can't get that. And then down Atal, Sudal, Mahatal, Stardal, Patal, and then beyond is the hellish planets. Beyond the world like this. So which planet you want to go out of this? How many want to go Tapaloka? Nobody. Okay, how many want to go Swarloka? What an enjoyment there. It's much better than Bangalore. Anybody wants to go Swarloka? Nobody wants to go Swarloka. Anybody want to go Mahaloka? They want to stay. There. Nobody. Anyone to go Janaloka? Tapaloka? Satyaloka, abode of Lord Brahma. He has a lifetime of whole of universe. जितने universe रहते हैं तब तक वहाँ रहते हैं. Satyaloka, nobody. So where do you want to go? Beyond the universe. But now understand what does it mean to go to Goloka? Then I started qualification to go to all these planets. Then you understand what it means to go to Vaikuntha, which Chaitanya Mahaprabhu was given so easily. So the highest mercy given to the most unqualified candidates. Some sampradaya talk about Avil goals, सबने में मतलब 100 lifetimes it takes. Because they have a krama path. First go to Swarloka, Mahaloka, then it will take 100 years. But if you directly try to go, like for example, you have to become Indra, then you have to do a lot of things. But you don't want anything like Indra's power and things. Just be simple, Gopa, Gopi, specific, then it is easy. So you want to, this is for example, you have to become temple president, you have to become GVC. It's difficult in ISKCON or not? But to become a simple devotee is easy or not? How many people can become? See, one path is first you think I have to become temple president, I have to become GDC, then I will go back to Godhead. So which is a little difficult path. But I have to become a simple humble devotee, just menial seva करने का है, भक्तों की सेवा करना है. So it is very easy path. The same way, we want to become a devta, go higher, and then go. It's a difficult path. But just Kanadapi Samijena Daragapi, Krishna, Amanina Manina, Kirtanya, Sadari. Path is very simple. उसको humble बनना पड़ता है, ईगो को छोड़ना पड़ता है. ये ह्यूमिलिटी का पाथ है, तो बहुत आसानी से निकल जाता है. हाँ, वो ऊपर कहीं पे है, इसमें दिखाया नहीं है. So millions of such universes emerged from Mahavishnu, was only a portion of Sri Krishna. And from Krishna come Balaram, Vasudeva, Sankarshan, Pradyum, and Nirvana. Then from Sankarshan comes Narayan. From Narayan comes another Chaturvedi. Then comes Mahavishnu, Mahadev. Then comes Mahavishnu, Garaskrishna, Sri Krishna. So Krishna is the source of everything. Then Gayatri manifested, Namaji prayed, Govinda Madi Krishna, Tama, Tamishram, and Tamishram, Moha. So sense of forgetfulness of one's reality, Moha. Self-deception, Tama. And sense of false ownership, Mahavai. This belongs to me, possessiveness. So we all struggling with this. That's why when we know this knowledge of Moha goes away, understand, मेरा कुछ भी नहीं है, सब किसका है? भगवान का है. And just a caretaker. That's why we write in care of.
We don't say this belongs to me. We say in care. I don't know, you would have seen in care, devotee name is written ICO करके लिखा होता है. आपने देखा नहीं देखा? ICO करके. So we don't write our name on anything. We write ICO and then write our name. In care of. So what is written on your building name is written? What is written? धीरे से I remember everything you write ICO करके. I think वो culture चला गया अभी धीरे धीरे. In care of. Nothing belongs to me. Everything is in care of. In all the key. The Brahmaji created design, but gave Vedic knowledge also. Okay, further we not go than Narada, Sanhu, Brahma. When Brahmaji saw first Sanat Kumara's case, they said we will not beget children. It's a thing. We want to remain child only. Brahmaji got frustrated. Who will increase the population? See, now the problem is already so much population to make them devotees. That time the problem is not population only. There. So Sambhu Manu and Shradrupa appeared from his body with beard and swollen breast respectively. Then Brahmaji did some magic. He had to create two species that they get attracted to each other and keep begetting children. So that my service will go on and I will do better. So that's how Brahmaji created man and female, that they get attracted to each other and keep creating the population. So therefore creating progeny is also a service to Brahmaji. Creating progeny is also service to Brahmaji. And that's how he has created that attraction. But when people want to enjoy without having progeny, that becomes sinful. And Chatushkamalas were intelligent, but Brahmaji made another intelligent plan. Three deities, Vishnu there, executing heads of the three lords. So that's how this whole PPT it goes. I hope it will be so much knowledge is overwhelming today, but just to show so much is there. So much is there, and we need exposure to this knowledge. How many first time got this? I think first few sessions I shown a creation of 15 or something. But जितनी बार सुनो इसको नया ही लगता है. Okay. I think one thing is that whichever class you come, it feels it's new only. Because you don't remember what you have done. And that's why scripture knowledge. See, another thing, why we feel, some do to say, सेम चीज तो बताते हैं हर क्लास में, क्योंकि अप्लाई नहीं करते तो हर चीज सेम जैसे लगती है. Once you apply, same thing will look. Spiritual knowledge never looks same. See, every class you will have your knowledge body of spirit soul. It is same only, but it's not same. Because every time you come in class, you get a different realization when you hear it. You get a different. So when we apply the knowledge, then knowledge will start giving understanding and realizations. And that knowledge uplifts us. Astama, Tamsama, Jyotirgaya, Mrityuma, Mrityaya. But you don't apply knowledge. That means not chant our rounds nicely, don't read proper books regularly, don't try to apply in your daily life. Then it will look like say एक ही चीज बता दो. So you have to apply and read proper books regularly. Then it will happen. So you have to become a serious devotee. You understand? After hearing this, you feel we need to become a serious devotee or not? How many of you feel you should become serious devotee? Oh, nobody is forcing you, but you feel from inside. कि देखो इतना मजाक बात भी नहीं, महाप्रभु का मर्सी है, लेकिन इतना मजाक भी नहीं है, तभी चीज़ें समझते हैं करके. What does it mean? एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, इतना डिटेल्स है इसमें. ऐसा हमने मान नहीं लिया है कि तुम चले जाओगे, क्या लेयर्स है, हम कौन हैं, ये सब पूरा रिफ्लेक्शन है या नहीं है करके. और जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेंगे, उतना इन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है. सेंस ग्रेटिफिकेशन करते ही सब चीज़ें दिमाग से उड़ जाती है करके. इसलिए जीवन का लाइफ स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाभो जीवे यावता. तो सी one requires eating, mating, sleeping, mating differently, but it's only for keeping the body and soul together. Jivasya tattva jigyasa. The goal of life is to inquire about who am I, who is God, and what is my relationship with Him. And other activities should be just keep to the extent that life is going on.
Like you need to have a healthy body. Life keeps going. You need to take care of the family. Life keeps going. But more focus should be on spirituality. That is very important. So, any questions? Okay. पहले किस सेकंड्स में एक क्वेश्चन करें? ठीक है, पहले एक इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं. Yeah, but intelligence is higher than mind. I think that is spiritual intelligence. But mental intelligence becomes secondary to the mind. That's a question. Yes. Okay, Shikant. प्रभु जी, मैं भागवत में पढ़ रही होती, तो उसमें काफी हद तक बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब हम जो भी हम यहाँ गलत करते हैं तो हमें अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है. हाँ. इस यहाँ पे रहते हुए हम एक छोटी सी चोरी करने से या डरते हैं कि पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, या हम उस चीज़ को करने से अवॉइड करते हैं. बट बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई है उसमें कि आपको उसके तो हम क्यों नहीं डरते हैं उस चीज़ से, क्योंकि हम देख नहीं पाते कि क्योंकि अभी faith नहीं है. faith नहीं. अभी faith क्योंकि नहीं है. उसमें इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि मतलब 5वें स्कंद का लास्ट चैप्टर ना. हाँ, तो वो मैंने अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि मैं रिलेटेड है ना, सभी स्कंद में थोड़ा थोड़ा तो रिलेट है. डिटेल में नहीं पढ़ा, देखिए तो डिटेल में नहीं पढ़ा तब डर लग रहा है. थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा? कोटेशन पढ़ी थी जो तो मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग एक छोटी सी चोरी करने से डरते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और हम उसे नहीं करते हैं. But there are many people who don't fear also, no? काफी But लोग in हैं, general, नहीं, but काफी चोर भी है ना. हाँ? अगर सब डरते तो चोर नहीं होते. आपको चोर पिटाई खाने के बाद भी फिर चोरी करते हैं. बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने अभी तो मैंने 2 महीने ही हुए हैं पढ़े हुए. मैंने एक ही स्कंद किया है, नरसिंह अवतार, और कल के अवतार में अभी पढ़ रही हूँ. उसी में इतना लिखा हुआ है कि अभी तक मैंने मतलब बहुत डिटेल में लिखा हुआ है. तो हम लोग क्यों नहीं डरते हैं और हम क्यों नहीं समझते हैं इससे? लेकिन हमने पढ़ा नहीं ना कभी तक. तो लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं. क्योंकि मतलब एजुकेशन सिस्टम में इतना बेसिक भी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बिना डरे सेल्फ सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं. बिना डरे Ignorance. वही ना, ignorance is bliss. अगर हम किसी को बताते भी हैं कि ये मत करो, मानेगा नहीं ठीक है, वो. देखा जाएगा, जब होगा सब देखा जाएगा. अभी तो ऐसे ही चल अभी तो एंजॉय करो ना. यस, एक ही लाइफ है, एंजॉय कर लो, ठीक है. बट चार अगर दिन की पेज को जिंदगी कोई है. पढ़ ले तो शायद इसलिए तो लोग नहीं पढ़ना चाहते ना. पढ़ना नहीं चाहते हैं. कि अगर आप आज 50 साल पहले 100 साल पहले भारत में देखो, आपने घर में देखा होगा, मम्मियाँ बहुत डरती थी, दादी माँ डरती थी, पाप हो जाएगा, उसे पाप मत करा. हमने सीन इन आवर फैमिली. आज कोई नहीं डरता. तो पहले And we are भारत trying to cover up all this. पहले भारत में सिस्टम था. अब क्या हो गया, अंग्रेजों ने प्रूव कर दिया कि माइथोलॉजी है, और हम लोगों ने बच्चों को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा दिया. वो भी क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी है. तो विश्वास मत करो, मस्ती करो, लड़की घुमाओ, तो जैसे हम 4 गाड़ी साल घुमाओ. की किसी That's what भी everybody is doing. क्यों? अभी उसमें कोई पाप नहीं है, तो मस्ती करो, एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा.